Good morning students. Last time we have started topic linear programming and last time हमने इससे related कुछ questions और applications की थी, तो we will continue the topic. Let us start with some more questions related to linear programming. जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, extremely important topic from the examination point of view, and let us start some more questions related to linear programming. So here is the question, students. Minimize and maximize given objective function z is equal to x plus 2y subject to the constraints है x plus 2y greater than or equal to 100, 2x minus y less than or equal to 0, 2x plus y less than or equal to 200, and two non-negative constraints x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0. Students, this is the question. Minimize and maximize z is equal to x plus 2y subject to the given constraints. So let us solve it. First of all, I will take this constraint x plus 2y is equal to 100. Get the points from here. If x is equal to 0, y is equal to 50. And if y is equal to 0, x is equal to 100. Second constraint, ये equation ही है, y is equal to 2x, it will be equation passing through the origin, and the another constraint 2x plus y is equal to 200. From here, if I will take x is equal to 0, y will be 200, and if I am taking y is equal to 0, x will be 100. So from here the points are 0 and 200, 100 and 0. So let us plot the graph. X-axis, y-axis and origin. x की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 100 तक जा रही है, 20, 40, 60, 80, 100, 120. y की मैक्सिमम वैल्यू 200 तक जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स की जो है वो डिवीज़न कर लेते हैं हम. 40, 80, 120, 160 and 200. Let us plot the points now. When x is 100, y is 0. When x is 0, y is 50. So 50 will be exactly here. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारा फर्स्ट ग्राफ आ जाएगा स्टूडेंट्स. x plus 2y is equal to 100. y is equal to 2x. It will be a line passing through the origin. Line passing through the origin and slightly inclined towards y-axis. Slightly inclined towards y-axis. And lastly, when x is 0, y is 200. When x is 100, y is 0. We have to join these 2 points. This is the graph of y is equal to 2x and this one is the graph of
2x plus y is equal to 200. Now let us come to the shaded region. How we will get the shaded region? For the shaded region, what we will do here, x plus 2y greater than or equal to 100. तो अगर हम इसमें 0 0 फिल करते हैं, 0 is greater than or equal to 100 which is false, तो इसका मतलब इसका जो रीजन होगा इट विल बी अवे फ्रॉम द रीजन, might be like this. Y is greater than or equal to 2x. Y is greater than or equal to 2x. इसका shaded region this side होगा. 2x plus y is less than or equal to 200. इसका shaded region inwards होगा. Ultimately जो shaded region बना वो ये वाला बन गया हमारा bounded region, तीनों कर्व्स के लिए कॉमन, तीनों कर्व्स के लिए कॉमन बाउंडेड फिजिबल रीजन, दिस वन बाउंडेड फिजिबल रीजन. Here corner points are this one, this one, this one and this one. 4 corner points are there. Let us naming them A, B, C and D. उसमें से ये जो 4 कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, वी हैव गॉट द फिजिबल रीजन. A, B, C, D is a feasible region, feasible bounded region. और इस फिजिबल बाउंडेड रीजन में से ए के कोऑर्डिनेट वी नो, बी के कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट हमें निकालने पड़ेंगे. डी के कोऑर्डिनेट हमें पता है 0,200. बी पॉइंट बी इज द इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 2x एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 100. बी इज पॉइंट ऑफ intersection of y is equal to 2x and x plus 2y is equal to 100. और अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो तो b के कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे 20 and 40. 20 and 40. C is the point of intersection of y is equal to 2x and 2x plus y is equal to 100. C is point of intersection of y is equal to 2x and 2x plus y is equal to 200. इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो C के कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे 50 and 100. Now we have got all the 4 coordinates. अब हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइजेशन की जो वैल्यू है वो इवेल्युएट कर सकते हैं यहाँ से. तो लेटर्स कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास इस क्वेश्चन में हो गए. कॉर्नर पॉइंट्स आर A, B, C एंड D और इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स हैं कोऑर्डिनेट्स एंड द वैल्यू ऑफ z. z हमारे पास है x प्लस 2y. कोऑर्डिनेट्स a के कोऑर्डिनेट है 0 and 50. पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स है 20 and 40. पॉइंट c के कोऑर्डिनेट्स 50 and 100 एंड पॉइंट d के कोऑर्डिनेट्स 0 and 200. इनको पास कराना शुरू करते हैं. a को पास कराया तो z की वैल्यू आ गई 100. b पॉइंट को पास कराया, अगेन z इज इक्वल टू 100. c पॉइंट को पास कराया, z की वैल्यू कितनी आ गई 50.
और इधर से आ गया 100, 200 प्लस 50, 250, और लास्ट पॉइंट इसकी वैल्यू आ जाएगी 400। तो मिनिमम वैल्यू इज 100। ये मिनिमम हो गई दोनों पॉइंट्स पे, और दिस इज द मैक्सिमम। तो मिनिमम वैल्यू ए और बी, इस पूरे सेगमेंट के ऊपर कोई भी पॉइंट लें, दैट विल गिव अस द मिनिमम वैल्यू। सो लाइन सेगमेंट ए बी विल गिव मिनिमम वैल्यू। Line segment AB will give minimum value, and the minimum value is 100, and the maximum value occurs at the point D. Maximum of Z is equal to 400, occurs at X is equal to 0, Y is equal to 200. तो दिस इज द सिचुएशन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, वी हैव टू फाइंड मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइजेशन वैल्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन अंडर द गिवन कंस्ट्रेंट्स। तो हमने सारा ग्राफ ड्रॉ करके इन इक्वेशंस को रीजन फाइंड आउट किया, बाउंडेड फिजिबल रीजन हमारे पास आया, और उसके अकॉर्डिंग कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के हमने सारे कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर जो वैल्यूज़ आई और उन सारी वैल्यूज़ को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से पास कराया। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 पॉइंट्स पे आ रही है, तो पूरा लाइन सेगमेंट जो है ये मिनिमम वैल्यू देगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 200 पे आ रही है, 0 और 200 पे, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 400। तो दिस वाज द क्वेश्चन जिसमें हमने साइमल्टेनियसली मिनिमाइज और मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन को करना था। नाउ लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज maximize Z is equal to maximize Z is equal to minus x plus 2y subject to the constraints x greater than or equal to 3, x plus y greater than or equal to 5, x plus 2y greater than or equal to 6, and y is greater than or equal to 0. So this is our question. We have to maximize it. First constraint x equal to 3. ये तो लाइन ही होगी डायरेक्ट, बिल्कुल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट 3। x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसके लिए पॉइंट्स निकालना बिल्कुल सिंपल। इफ आई विल टेक x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। इफ आई एम टेकिंग y इज इक्वल टू 0, x विल बी 5। तो देयर आर 2 पॉइंट्स 0, 5 एंड 5, 0। अनदर इन इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6। If I am taking x is equal to 0, y will be 3. If I will take y is equal to 0, x will be 6. और लास्ट है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट y is greater than or equal to 0. अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। तो लेट अस प्लॉट हेयर x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन। x की मैक्सिमम कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो 6 तक जा रही है, तो मैं 1, 1 का ही डिफरेंस लूँगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। y की मैक्सिमम वैल्यू 5 तक है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। पहले दोनों पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। व्हेन x इज 0, y is 5. When x is 5, y is 0. Join them.
ये ग्राफ आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 5 का। x इक्वल टू 3, लाइन पासिंग थ्रू द point 3 and parallel to y axis. This is x is equal to 3. x plus 2y greater than or equal to 6, और इसके पॉइंट्स हैं when x is 0 y is 3, when x is 6 y is 0. Join them. ये ग्राफ हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 6 का। रीजन सेलेक्ट करते हैं। पहला है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अगर हम इसमें 0 फिल करें, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इट इज फॉल्स। इसका मतलब ये इस तरफ आएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये मेरे पास x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 का ग्राफ है, तो इट विल बी आल्सो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, इट इज आल्सो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, बाहर की साइड। तो अल्टीमेटली जो ग्राफ बन रहा है इस क्वेश्चन में वो सारा बाहर की तरफ बनेगा। तो मैं यो शेड कर देता हूं उस पार्ट को जिस तरफ ग्राफ आएगा। तो ग्राफ विल बी टुवर्ड्स आउटसाइड अनबाउंडेड ग्राफ। ये दिस इज द सिचुएशन ऑफ द ग्राफ, अनबाउंडेड ग्राफ अवे फ्रॉम द ओरिजिन, लाइक दिस, अनबाउंडेड ग्राफ। और इसमें ये वाला पोर्शन भी नहीं आएगा, पीछे वाला हमारे पास जो है ना x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो इसमें ये वाला पार्ट भी नहीं आएगा। तो इसको भी थोड़ा करेक्ट करते हैं। यहाँ पे इस लाइन के ऊपर ऊपर इधर इधर होगा सारा ग्राफ, ओनली दिस साइड। तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स बने, एक तो ये बना, दिस वन एंड दिस वन, 3 कॉर्नर पॉइंट्स बने। देयर विल बी 3 कॉर्नर पॉइंट्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। इस लाइन के पीछे नहीं ना आ सकते हम, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, वी हैव टू कीप द बाउंडेड रीजन राइट साइड ऑफ द x इज इक्वल टू 3। तो दिस इज बाउंडेड फिजिबल रीजन, बाउंडेड फिजिबल रीजन। Now, A के कोऑर्डिनेट हमें पता है 6,0, B के कोऑर्डिनेट और C के कोऑर्डिनेट हमें निकालने पड़ेंगे। तो लेट अस फाइंड दोज। B is the intersection of मेन टू जो इन इक्वेशंस थी, इन दोनों का इंटरसेक्शन है। B इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 6। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो इट विल बी x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्ट y इज इक्वल टू 1। अगर y 1 है तो x कितना हो गया 4, तो b के कोऑर्डिनेट आ गए 4, 1। नाउ c is a point of intersection of x is equal to 3 and x plus y is equal to 5. c is point of intersection of x is equal to 3 and x plus y is equal to 5. x की वैल्यू अगर हम इसमें 3 फिल करते हैं तो y कितना आ गया 2 और x आपके पास 3 है ही है, तो पॉइंट हो गया c के कोऑर्डिनेट हो गए 3,2। नाउ वी हैव गॉट ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स
कॉर्नर पॉइंट्स जो हमारे बन रहे हैं अनबाउंडेड फिजिबल रीजन के, उसको अटेम्प्ट करते हैं अकॉर्डिंगली। कॉर्नर पॉइंट्स, देयर कोऑर्डिनेट्स, वैल्यू ऑफ z, z है -x+2y। कॉर्नर पॉइंट्स हैं A, B एंड C। A के कोऑर्डिनेट हो गए 6 एंड 0, B के कोऑर्डिनेट 4 एंड 1, C के कोऑर्डिनेट 3 एंड 2। अगर मैं इन पॉइंट्स को इसमें से पास कराता हूं, x की जगह -6, y की जगह 0, तो z की वैल्यू आ गई -6। अगर x को 4 फिल करते हैं, y को 1 फिल करते हैं, तो z की वैल्यू आ गई -4 + 2 -2। और लास्ट अगर हम x को 3 फिल करते हैं और y को 2 फिल करते हैं, तो z की वैल्यू आ गई -3 + 4 1। मुझे करना क्या है, इसको मैक्सिमाइज। आई विल हैव टू मैक्सिमाइज इट। तो अपरेंटली मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है +1। तो पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 1 अकर्स एट द पॉइंट 3, 2। लेकिन जैसे बेटा कल भी हमने क्वेश्चंस किए थे, अगर अनबाउंडेड रीजन है तो हम इमीडिएटली जो वैल्यू हमें कॉर्नर पॉइंट से मिली है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इस वैल्यू को टेस्ट करना होगा। अगर उसके अकॉर्डिंग टेस्टिंग डन हो जाती है तब हम एक्सेप्ट करेंगे कि ये वैल्यू मैक्सिमम है, अदरवाइज नहीं है। तो z की वैल्यू 1 मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से पास कराऊंगा और एक ग्राफ और मुझे रीड्रॉ करना होगा। सो देयरफॉर ड्रॉ अनदर ग्राफ ऑफ -x + 2y ग्रेटर देन 1। अगर मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है तो यहां पे हम ग्रेटर देन लेंगे, अगर मिनिमाइज का क्वेश्चन है तो यहां पे लेस देन लेंगे। ठीक है, तो मुझे ये ग्राफ यहां पे प्लॉट करना है। तो इसके लिए भी पॉइंट्स निकाल लो। अगर मैं x को 0 लेता हूं तो y कितना हो जाएगा 1/2। इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। इफ आई विल टेक x 0 तो y कितना हो गया 1/2। इफ आई एम टेकिंग y इज इक्वल टू 0, x विल बी -1। x विल बी -1। तो x -1 यहां पे होगा। एक पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा पॉइंट हो गया अगर x 0 है तो y हाफ है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। दोनों को ज्वाइन करता हुआ ग्राफ जाएगा और उसके बाद इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग डॉटेड लाइन में यह ग्राफ ड्रॉ होगा, ऐसे डॉटेड लाइन में। और उन्होंने कहा है कि इट इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब अगर मैं x और y को 0 लेता हूं तो इट विल बी ग्रेटर देन 1। इट विल नॉट टुवर्ड्स द ओरिजिन, इट विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस ग्राफ का जो रीजन बनेगा सॉल्यूशन का वो ये बनेगा। तो ये बाउंडेड फिजिबल रीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ये जो हमारा रीजन आया जिसको हमने टेस्ट करना था हाफ प्लेन को, तो वो जो रीजन है वो उसके साथ कॉमन रीजन बना रहा है। तो यहां पे ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। हेयर वी कैन से ग्राफ ऑफ -x + 2y greater than 1 has a common region with unbounded feasible region, has a common region with unbounded feasible region। तो यहां पे स्टूडेंट्स एक रिजल्ट है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो भी हमने पॉसिबल वैल्यू निकाली मैक्सिमाइज की या मिनिमाइज की, वो तभी एक्सेप्ट होगी अनबाउंडेड वाले क्वेश्चन में
अगर आपने जो नया ग्राफ ड्रॉ किया उसका कोई भी पोर्शन गिवन फिजिबल रीजन के साथ कॉमन ना हो। अब यहां पे क्या आ गया कि जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया ऑब्जेक्टिव फंक्शन से रिलेटेड उस पॉइंट को लेके, मैक्सिमम पॉइंट को लेके, तो वो अपना कॉमन रीजन अनबाउंडेड फिजिबल रीजन के साथ शेयर कर रहा है। ठीक है, तो दैट्स वाई जो गिवन हम प्रोबेबल वैल्यू सपोज कर रहे थे कि ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, इट कैन नॉट बी ए मैक्सिमम वैल्यू। सो यहां पे हम डिक्लेयर करेंगे गिवन फंक्शन, गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। सो देयरफॉर गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू -x + 2y हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। दिस इज अ मेजर पॉइंट इन दिस क्वेश्चन, स्पेशली अनबाउंडेड वाले क्वेश्चंस में। जो कल हमने क्वेश्चन किया था वो मिनिमाइज का था, और आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है मैक्सिमाइज अनबाउंडेड प्रॉब्लम, और उसमें जो कॉमन रीजन के साथ ये पॉइंट शेयर हो गया, तो इसलिए जो वैल्यू हम सोच रहे थे कि इट मे बी मैक्सिमम वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज टू बी रिमेंबर्ड कि अगर अनबाउंडेड का क्वेश्चन है तो आपको जो आपको पॉसिबल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल रही है उसको आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लेना है। अगर मैक्सिमम का क्वेश्चन है तो आप ग्रेटर देन दैट पॉइंट लोगे, और अगर मिनिमाइज का क्वेश्चन है तो आप लेस देन दैट पॉसिबल वैल्यू लोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाउ लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चंस रिलेटेड टू application of LPP. Questions related to application of LPP, formulation of LPP। हमें LPP की क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट की फॉर्म में होगा, and we will frame it. I have a question. Statement is a person wishes to mix two types of food. There are two types of food, P and Q, in such a way that the vitamin contents of the mixture contains at least 8 units of vitamin A, at least 8 units of vitamin A। मैं मेन पॉइंट्स जो है वो क्वेश्चन के यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसी के बेसिस पे हम जो है वो इक्वेशन ड्राइव करेंगे। एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। फूड पी की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फूड पी इज इक्वल टू ₹60 पर केजी, एंड फूड क्यू की जो कॉस्ट है दैट इज ₹80 पर केजी। फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट्स पर केजी विटामिन ए। Food P contains 3 units per kg of vitamin A, and 5 units per kg of vitamin B, 5 units per kg of vitamin B, while food Q contains 4 units per kg of vitamin A, 4 units per kg of vitamin A, and 2 units per kg of vitamin B, 2 units per kg of vitamin B। Determine the minimum cost of the mixture। जो इस मिक्सचर की मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये मेरे पास डाटा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू, और एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ई उस मिक्सचर में होना चाहिए, एटलीस्ट 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ द फूड पी इज गिवन, फूड क्यू इज गिवन। फूड पी में विटामिन ए और विटामिन बी का क्या कंटेंट है, इट इज गिवन।
फूड क्यू में विटामिन ए और विटामिन बी का क्या कंटेंट है, इट इज़ आल्सो गिवन। अब मैं ये सारा डाटा एक टेबल की फॉर्म में यहाँ पे अरेंज करता हूँ। तो लेट अस ड्रॉ द टेबल। तो सपोज पर्सन टेक्स x kg ऑफ फूड P, let x kg of food P and y kg of food Q. इतना उसने फूड P का जो कंटेंट लिया वो x kg लिया, फूड Q का कंटेंट जो लिया वो y kg लिया। तो यहाँ पे ये देखो, ये हो गया फूड, इधर उसकी क्वांटिटी हो गई, कंटेंट ऑफ विटामिन ए, कंटेंट ऑफ विटामिन ए, कंटेंट ऑफ विटामिन बी, एंड लास्ट में आ गई कॉस्ट, लास्ट में आ गई कॉस्ट। तो इक्वेशन यहां से फ्रेम हो जाएगी। तो टू टाइप्स ऑफ फूड आर देयर, पी एंड क्यू। पी की क्वांटिटी मैं x kg ले रहा हूँ और जो क्यू फूड है उसकी क्वांटिटी है y kg। फूड P में विटामिन ए का कंटेंट क्या है, 3 यूनिट्स पर kg, तो ये हो गया 3x। 5 यूनिट्स पर kg ऑफ विटामिन B, 5x। कॉस्ट फूड P की क्या है, 60x होगी। फूड Q पे आते हैं। फूड Q में विटामिन ए का कंटेंट क्या है, 4x, 4y हो गया, और विटामिन बी का कंटेंट है 2y, और इसकी कॉस्ट है 80y। तो यहां पे इसका टोटल बनेगा विटामिन ए 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y टोटल कंटेंट, और इसका टोटल कंटेंट बन गया 5x प्लस 2y, और ये कॉस्ट हो गई। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हमने मिनिमाइज करना है। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। तो इसको आप z के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो, 60x प्लस 80y, जिसको हमने मिनिमाइज करना है। अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 60x प्लस 80y अंडर द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या है, विटामिन ए का टोटल कंटेंट कितना बना, 3x प्लस 4y, और यहां पे कंडीशन दी है विटामिन ए का कंटेंट एटलीस्ट 8 यूनिट होना चाहिए। तो एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, मिनिमम 8 या फिर उससे ज्यादा। विटामिन बी का कंटेंट 5x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, एंड x एंड y बोथ शुड बी पॉजिटिव। तो इस तरह से हमने पूरी स्टेटमेंट से ये पूरा का पूरा एलपीपी फ्रेम किया। तो पहले हमारे पास क्या होता था, डायरेक्टली ये क्वेश्चन होता था। अब क्वेश्चन ये सारा हमने फॉर्मुलेट खुद किया है। आफ्टर रीडिंग द स्टेटमेंट, उसको सारे को टेबल फॉर्म में अरेंज करके तो हमने ये पूरा का पूरा जो है एलपीपी फ्रेम किया है। तो यहाँ पे आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 एंड इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। तो इस एलपीपी को अब हमने अटेम्प्ट करना है। तो दोबारा से फिर देखो, देर वर 2 टाइप्स ऑफ फूड P एंड Q हैविंग एट लीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन A, 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन B। कॉस्ट ऑफ फूड P वाज गिवन, फूड Q वाज गिवन। फूड P में विटामिन A और B का क्या क्या कंटेंट है, दैट इज गिवन। फूड Q में विटामिन A और B का क्या क्या कंटेंट है, वो भी गिवन है। तो हमने ये सारा कुछ इस क्वेश्चन में अरेंज किया, पूरा का पूरा टेबल की फॉर्म में। तो अल्टीमेटली मेरे पास ये सारा कंटेंट आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा एलपीपी को ग्राफिकली। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास 2 इन इक्वेशंस है,
3x plus 4y is equal to 8 and 5x plus 2y equal to 11. तो फर्स्ट इन इक्वेशन 3x plus 4y is equal to 8, यहाँ से पॉइंट्स निकालते हैं. अगर x को 0 लिया तो y कितना आ गया 2, और इफ़ आई एम टेकिंग y इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8/3. 8/3. तो मेरे पास यहाँ पे दो पॉइंट आ गए 0, 2 एंड 8/3, 0. दूसरी इन इक्वेशन पे आते हैं. 5x plus 2y equal to 11. x is equal to 0, y is 11/2, y is equal to 0, x की वैल्यू आ गई 11/5. इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफिकली प्लॉट करेंगे. x एक्सिस, हेयर इज y एक्सिस एंड ओरिजिन. सबसे पहले जो x की मैक्सिमम वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 8/3 है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4. और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है अराउंड 5 से थोड़ा अबव है. 1, 2, 3, 4 and 5, 6. Let us plot the points now. अगर x 0 है तो y 2 है. अगर x 8/3 2 से काफ़ी आगे, लगभग 3 के पास. ठीक है, ऑलमोस्ट हेयर. तो इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ एक ग्राफ बन गया. ये ग्राफ आ गया 3x plus 4y is equal to 8. ये पॉइंट आ गया 8/3, 0 एंड दिस पॉइंट इज 0, 2. दूसरे पॉइंट पे आओ. व्हेन x इज 0, y इज 11/2. 11/2 5.5. और दूसरा आ गया व्हेन x इज 11/5, लगभग यहाँ पे होगा 2 से थोड़ा आगे, और y इज इक्वल टू 0. ये पॉइंट आ गया 11/5 एंड 0 एंड दिस पॉइंट इज 0, 11/2. दोनों को ज्वाइन करते हैं तो दोनों ग्राफ मेरे पास प्लॉट हो गए. पहला ग्राफ आ गया 3x plus 4y is equal to 8 and the second one is 5x plus 2y equal to 11. 5x plus 2y equal to 11. तो रीजन क्या बनेगा? पहले 3x plus 4y is greater than or equal to 8. अगर मैं इसमें x और y को 0 लेता हूं, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, नॉट पॉसिबल. इसका मतलब इट विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन. अवे फ्रॉम द ओरिजिन, बाहर की तरफ आएगा. और जो दूसरा है 5x plus 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11. इसमें भी अगर हम x और y को 0 लेते हैं, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, इट इज आल्सो फॉल्स. इट इज आल्सो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इस साइड. तो अनबाउंडेड हो गया. तो वी हैव गॉट अनबाउंडेड सिचुएशन. तो ये जो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन होगा आउटसाइड, बाहर की तरफ, ये वाला अनबाउंडेड फिजिबल रीजन. अब इसमें कॉर्नर पॉइंट एक तो ये बना और एक ये वाला और एक ये वाला. दो कॉर्नर पॉइंट हमें पता है. थर्ड वन वी हैव टू इवेल्युएट. तो तीसरा कॉर्नर पॉइंट हमें इवेल्युएट करना होगा. तो लेट अस इवेल्युएट द थर्ड कॉर्नर पॉइंट. तो एक कॉर्नर पॉइंट तो हो गया ए, इसका नेमिंग कर देते हैं ए, बी एंड सी. तो वन कॉर्नर पॉइंट इज ए, 8/3, 0. Another corner point B. B is the intersection of these two graphs,
इन दोनों का इंटरसेक्शन है, तो वो हमें इवेल्युएट करना होगा। B इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3x plus 4y is equal to 8 and 5x plus 2y equal to 11। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें b के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो लेट अस सॉल्व देम। सेकेंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्वेशन बन गई 3x plus 4y is equal to 8। तो ये आ गई बेटा 10x plus 4y equal to 22। सब्ट्रैक्ट देम। -7x इज इक्वल टू -14, तो x की वैल्यू आ गई 2। अगर x 2 है तो y कितना होगा? x आ गया 2, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 8। 4y 8 माइनस 6 2, y कितना आ गया 1/2। तो b के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ रहे हैं 2 and 1/2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आर 2 and 1/2। अब हमारे पास सारे पॉइंट्स इवेल्युएट हो गए। वी हैव गॉट ऑल द पॉइंट्स। ए के कोऑर्डिनेट 8/3, 0, बी के कोऑर्डिनेट 2 and 1/2, सी के कोऑर्डिनेट है 0 and 11/2, 0 and 11/2। इन तीनों पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से पास कराते हैं एंड ट्राई टू गेट फॉर द मिनिमम वैल्यू। तो कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास हो गए ए, बी एंड सी। कॉर्नर पॉइंट्स, देयर कोऑर्डिनेट्स एंड द वैल्यू ऑफ z। वैल्यू ऑफ z। कॉर्नर पॉइंट्स हैं ए, बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट 8/3, 0, बी के कोऑर्डिनेट 2 and 11/2, 2 and half, एंड सी के कोऑर्डिनेट 0 and 11/2। इन तीनों पॉइंट्स को हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से पास कराया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा 60x plus 80y। तो पहले पॉइंट को जब हमने पास कराया तो वी आर गेटिंग द वैल्यू। 8/3 और 0 को पास कराया तो बेटा वैल्यू आ रही है हमारे पास 160। दूसरे पॉइंट को पास कराया तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है अगेन 160, और 0 and 11/2 के ऊपर जो वैल्यू आ रही है दैट इज 440। 440। तो कॉस्ट वाज द मिनिमम। इसका मतलब दो पॉइंट्स हैं जो मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ए और बी दोनों। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है। अब जैसे अनबाउंडेड का केस है, हम इमीडिएटली डिसाइड नहीं कर सकते कि यही मिनिमम वैल्यू होगी, तो हमें इसकी टेस्टिंग करनी होगी। मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 160, उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से पास कराएंगे और चेक करेंगे कि वाकई ये मिनिमम वैल्यू है या नहीं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 60x plus 80y, हम उसको लेंगे लेस देन 160, लेस देन 160। तो इसको 10 के साथ अगर डिवाइड कर दें इट विल बी थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 6x plus 8y लेस देन 16। 2 से फर्दर डिवाइड कर दो, 3x plus 4y लेस देन 8। तो सिंपल हो गया बहुत। इसका ग्राफ प्लॉट करना है हमें। 3x प्लस, अगर इस ग्राफ का कोई भी रीजन फिजिबल रीजन के साथ कॉमन ना हुआ तो यही मिनिमम वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी, अदरवाइज इट विल बी रिजेक्टेड। तो इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें, x इज इक्वल टू 0, y इज 2, y इज इक्वल टू 0, x विल बी 8/3। तो x 8/3 यही पॉइंट आ जाएगा, और अगर हम x को 0 लेते हैं y2 यही आएगा। तो ये वाला पार्ट हमारा बना और हमें कोई नई लाइन ड्रॉ नहीं करनी पड़ेगी। तो दिस इज द सिचुएशन, और यही हमारा इस लाइन के लिए भी ग्राफ हो गया। तो लेस देन का मतलब इट विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो वी कैन से नो रीजन ऑफ दिस ग्राफ हैज कॉमन विद अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, सो देयरफॉर नो रीजन ऑफ
ग्राफ 60x plus 80y less than 160 is common with given unbounded feasible region. So therefore minimum value for the given objective function जो कि cost की minimum value है, therefore minimum cost for the function is 160 which is on the segment AB. तो ये था फॉर्मूलेशन ऑफ एलपीपी से रिलेटेड क्वेश्चन, और कमिंग लेक्चर्स में हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फॉर्मूलेशन ऑफ एलपीपी, कोई भी स्टेटमेंट दी हो वहां से आपने एलपीपी खुद फ्रेम करनी है विद द हेल्प ऑफ टेबल। पूरा कंटेंट हमने टेबल पे अरेंज करना है, फिर इनइक्वालिटीज खुद लगानी है। एट लीस्ट का क्वेश्चन हो तो ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी लगेगी, एट मोस्ट का क्वेश्चन हो लेस देन और इक्वल टू की इनइक्वालिटी लगेगी। ठीक है, और या तो क्वेश्चन कॉस्ट का होगा तो मिनिमम होगा, और अगर प्रॉफिट का क्वेश्चन होगा तो वी हैव टू मैक्सिमाइज इट। तो बेटा दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एलपीपी, जिसमें हमने फॉर्मुलेशन करनी है एलपीपी की। तो यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट प्रॉपरली एंड वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक in the upcoming lectures. Thank you very much.